Namaskar, my dear student and engineering freshers. So, in my this video, I am again explaining the things which are the important for the engineering industries, either pharmaceutical industries, either automobile industries. Everywhere in every organization, engineers are feeding, but the requirement of the job are less versus number of the engineers available in the market. So here problem is that how to compete the situation, how to get the job in this bhankar situation. You can say situation is too much dangerous. And after this COVID situation, number of the industries they have debarred the number of the employees. So situation are worsening, but still there is a lot of opportunity for the students of the engineering. Still, I am requesting each student hard work, good study, and always take the clear concept of the engineering subjects. No doubt, subjects are not too much hard, but it is not too much easy to understand the things. So, you need to focus, apply your hard work, focus on the concentration of the subject, and well prepare your practical at your institute. You can say at your college, either your organization. So here I am again saying is that if I take the example of the my industries, there is a lot of engineers. Competition are too much. If we take the example at fresher level, there is a suppose 8 to 10 employees are the freshers. So whatever be the job we are giving them, it's a basic jobs. It's a simple job. You can say it's a helping job to your seniors. This is the culture of the every industries. Happening here what that every fresher student they don't have any concept, they don't have any the situation, either they don't know about the any culture about the industries, and too much failure here is what at the entry time there is a lot of question, lot of doubts, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे डाउट्स, और कुछ लोगों में फियर्स भी होते हैं उसको लेकर के कि कैसे हम इस सिचुएशन को टैकल करेंगे, कैसे इनको हम हैंडल करेंगे और किस तरीके से हम आगे जाएंगे. दिस क्वेश्चन वाज आल्सो रेज्ड इन माय माइंड व्हेन आई वाज ज्वाइन द इंडस्ट्रीज इन 2007-2008. At that time situation is not worsening, it was opportunity was more, but due to the absence of the social media, absence of the technical medias, job at that time we are searching through the references, either through friends and through another medias. But today's situation has been totally worsened out. अब ये टफ है, अब ये इजी तो नहीं है, एंड आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग, बट मैं यहाँ पे आप लोगों को ये टीच करना चाहता हूँ, ये सिखाना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन को टैकल कैसे करना है. पहली चीज़ तो ये, आप जब आप इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करते हैं, सेकेंड ईयर में आते हैं, थर्ड ईयर में आते हैं, फोर्थ ईयर में आते हैं, तो पहली चीज़ आपको करना क्या है, तो क्लियरली आप सेकेंड ईयर आने आने तक, थर्ड ईयर आने आने तक आप अपने आप को जज कर लीजिए कि आपको करना क्या है, आपको किस सेक्टर में जाना है, आपको किस सेक्टर में इंटरेस्ट है. आप अगर गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप थर्ड ईयर से ही अपना प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन देयर सिलेबस यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, थर्ड ईयर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, number of materials, those are asking in the question of the government services, either national level exams are based on third and fourth year subject. क्योंकि थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के जो सब्जेक्ट्स है दे आर द बेस, नॉट अ बेस ऑफ द इंजीनियरिंग. इट्स अ टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट. जो वर्ल्ड की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिस रेस में वर्ल्ड आगे जा रहा है,
वो उस रिलेटेड टू सब्जेक्ट है, उनको हम क्लास सब्जेक्ट्स बोलते हैं। सो सो थर्ड एंड फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके कंसेप्ट आप उसको क्लियर कीजिए, बेसिक फंडामेंटल्स को इनिशियली अडॉप्ट कीजिए अच्छे से। क्योंकि सब्जेक्ट्स को रट्टा मार के मगअप्स करके बायहट करके एग्ज़ाम निकल सकते हैं, लेकिन एवरी एग्ज़ाम कैन नॉट बी चैलेंज थ्रू दिस थ्री टर्म्स। मतलब मगअप्स करके बायहट्स करके वर्बली रट्टा मार के नहीं होने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स गिनती के 0.01% सक्सेस हो भी जाते हैं, बट आप ये सोचिए कि आपको 10,000 लोगों के बीच में दौड़ना है, तो आपको कोई भी तुक्का लगाना नहीं है। बेटर वे कि आप कॉन्सेप्ट को रीड करो, चीज़ों को समझो, नहीं समझ में आए उनको रिपीट रिपीट पढ़ो, बेस्ट गाइड ले लो, बेस्ट ट्यूटर के यहाँ पे आप जाओ जो आपको इन सब चीज़ों से उबार सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ में मेरे यहाँ पे काफ़ी फ्रेशर्स हैं, काफ़ी इंट्रोडक्टरी जॉब्स हैं, और आई एम ऑल्सो वर्किंग एज ए ट्रेनर फॉर द इंजीनियरिंग, आई एम ऑल्सो वर्किंग एज ए मेंटर, आई एम ऑल्सो वर्किंग एज ए इंजीनियरिंग एनर्जी सेविंग एंड मैनेजमेंट। सो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंजीनियरिंग की काफ़ी बड़ी होती हैं, बट बहुत ज़्यादा चैलेंज भी नहीं है। रूटीन वर्क ज़्यादा रहते हैं जो कि रोज़ रोज़ करना है अपने को। कुछ ही टाइम पर कुछ नए एडवांटेज, कुछ नए प्रोजेक्ट्स रहते हैं, या कुछ न्यू असाइनमेंट्स हैं, कुछ न्यू एनर्जी सेविंग्स इनिशिएटिव लेना है, जहां पर अपने को ऑर्गेनाइजेशन में हायर अथॉरिटीज़ दे आर डिमांडिंग फॉर द कॉस्ट सेविंग। तो अब ये कॉस्ट सेविंग के भी फंडेज इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में हर एक सेक्टर में आ चुके हैं, जहाँ पर लोग कॉस्ट सेविंग की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज़ द वास्ट, वो सबसे ज़्यादा फोकसिंग पॉइंट हो गया है। तो एनर्जी सेविंग सबसे पहले स्कोप में आ चुका है, जहाँ की हम बोलते हैं कि पावर सेव करना है, आपको फ्यूल सेव करना है, वाटर सेव करना है, इलेक्ट्रिसिटी, इट्सेट्रा स्टेप्स है। और अभी न्यू टर्म्स यहाँ पे इंडस्ट्रीज में ये भी आ चुका है, ऑफिसेज में, सेक्टर्स में, कि आपको पेपर भी सेव करने हैं। सो नाउ दिस इज द फोर्थ स्कोप आर गिविंग बाय द मैनेजमेंट टू द एम्प्लॉयज़ कि आपको पेपर सेव करना है। सो यहाँ पे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि डे बाय डे चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, और इनको टैकल करने के लिए आपका पेशेंस, आपका कंसंट्रेशन और आपका एटीट्यूड एंड बिहेवियरल स्टाइल बहुत मैटर करेगा। सो नेक्स्ट वीडियोस में मैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा। कुछ वीडियोस होने के बाद ही मैं फिर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के ऊपर अब डिस्कशन करूंगा। जिस स्टूडेंट को, आइदर जिन इंजीनियरिंग फ्रेशर्स को उनके इंडस्ट्री में, आइदर उनके कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में जो भी उनको प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, वो मुझसे शेयर करें, मुझसे बात करें। आई विल हेल्प एंड गाइड। और डियर स्टूडेंट, आइदर डियर फ्रेशर इंजीनियर्स, कुछ वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन मेरे कहीं कहीं गड़बड़ हो रहे हैं, बट प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब पे हेल्पिंग हैंड के लिए। तो कहीं कहीं पर मेरे प्रोनाउंसिएशन कुछ डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो वो सिर्फ कुछ ही दिन के लिए रहेंगे। एक बार मैं फ्लुएंटली इस पे चैनल पे कंफर्टेबल हो जाऊंगा आप लोगों के साथ, फिर ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सो अभी इनिशियली मैं न्यू चैनल पे आया हूँ करके कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन मेरे गड़बड़ हो जा रहे हैं। सो इन दिस वे आई विल हेल्प यू लॉट। I will help you in your every subject related to thermal, power, fluid mechanics, machine design, theory of the machine, and tool engineering, mechanical technology, manufacturing process, industrial engineering, industrial organization and management। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आई विल हेल्प, आई विल गाइड यू, और मैं आपको टीच भी करूँगा। कुछ वीडियोस मैं ऐसे भी बनाऊंगा जहां पर आपको मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। क्यों? क्योंकि उन कॉन्सेप्ट के बेस पे ही आप क्वालिटी इंजीनियर बन सकते हैं। क्योंकि क्वांटिटी इंजीनियर्स मार्केट में बहुत हैं, घूम रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग दी जॉब्स। रियलिटी है, एक्सेप्ट कर लो आप लोग इसे। मैं यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ सिचुएशन बता रहा हूँ जो चल रहा है अपने देश में, विदेश में, सभी जगह पे। सिनेरियो चैलेंजिंग है। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेशर्स, माय डियर स्टूडेंट, वर्क हार्ड, जितना हो सके उतना वर्क हार्ड करो।
और हार्ड वर्क से बेटर है स्मार्ट वर्क करो आप लोग। स्मार्ट वर्क में आपको बहुत फ़ायदा होगा। हार्ड वर्क में सिर्फ लेबोरियस जॉब होती है, बट स्मार्ट वर्क में आप जॉब का जो लेबर है उसको कम कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क के थ्रू आप जो है मैनेजमेंट और हायर अथॉरिटीज़ के साथ आप अच्छे कॉन्टैक्ट्स और अच्छे मीटिंग्स, अच्छे डिस्कशन करके अच्छा रिजल्ट्स दे करके आप उनको बेस्ट वे में प्रेजेंट कर सकते हो। कई बार होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मैंने देखे हैं कि वो हार्ड वर्किंग तो होते हैं बट उनके अंदर स्मार्टनेस नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, उनका हार्ड वर्क सिर्फ कुछ लेवल तक के लोगों को दिखता है बट वो उनके ग्रोथ के लिए काफ़ी नहीं है। कुछ लेवल तक वो जा सकेंगे आगे, उसके बाद वो नहीं जा सकते आगे। सो स्मार्ट वर्क आर वेरी नेसेसरी और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, स्मार्ट स्टडी कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क उसके नीचे रखिए। स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट रिलेशन, स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को एक्सेप्ट करना है और उसी के हिसाब से अपने को चलना चाहिए। सो आई एम स्टॉपिंग माई वीडियो हेयर। Thanks for your support and thanks for your views viewing to me.